Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this today's MCQ session, which we are providing you on this free YouTube channel, that is Triple S. So, starting today's MCQ session with question number first. Question number first here is, consider the following statements. Statement number first: the IPCC was set up by WMO, that is World Meteorological Organization, and UNEP, United Nations Environment Program. Statement second: as per 6th assessment report of IPCC, 1.5 degrees Celsius warming of the earth is inevitable even in the best case scenario. Which of the following which of the above given statements is or correct? Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. And option D, neither one nor two. आई होप कि आप सभी ने करेक्ट आंसर यहाँ पे टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू. देखिए, this IPCC, that is Intergovernmental Panel on Climate Change, I repeat here, Intergovernmental Panel on Climate Change, ये एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया गया था फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. यानी कि क्लाइमेट चेंज को रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए ये एक इंटरगवर्नमेंटल पैनल बनाया गया था. एंड दिस वाज सेट अप इन 1988 by World Meteorological Organization in association with UNEP, United Nations Environment Program. इसका काम ये था, and the objective was to provide policy makers with regular assessments of, जो उसको बता दे कि how climate change is occurring and इसके impacts क्या है, future risks क्या हो सकते हैं, and way forward क्या है, that is adaptation and mitigation practices क्या होनी चाहिए to overcome this climate change. So statement here is correct, that is IPCC was set up by WMO and UNEP. I repeat here, in 1988 this was set up by WMO in association with UNEP. Recently इसका sixth assessment report AR6 sixth assessment report रिलीज हुआ है. एंड उसका जो टाइटल था, इसका टाइटल था क्लाइमेट चेंज 2021, द फिजिकल साइंस बेसिस. हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो आया था आईपीसीसी का, उसका टाइटल क्या था. टाइटल था क्लाइमेट चेंज 2021, द फिजिकल साइंस बेसिस. एंड एज पर दिस रिपोर्ट जो कहा जाता है कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस और प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इन नेक्स्ट 20 years, दैट इज अप टू 2040 it will cross 1.5 degrees Celsius over pre-industrial levels, and by the middle of this century it will cross 2 degrees Celsius. if अगर हमने emissions reduce नहीं किए, it will cross 2 degrees Celsius over pre-industrial levels by the middle of the 21st century. And so statement second, that is as per sixth assessment report of IPCC, 1.5 degrees Celsius warming of earth is inevitable even in the best case scenario. Statement second again is correct. So option C, both 1 and 2 are correct. Coming on to question number second. Question number second here is, which state or UT government in India along with UNDP, that is United Nations Development Program, is to develop India's first conservation snow leopard conservation knot system. This is center here. Sorry. India's first snow leopard conservation center. Option A, Ladakh. Option B, Jammu and Kashmir. Option C, Uttarakhand. And option D, Himachal Pradesh. I hope कि आपने करेक्ट ऑप्शन गेस कर लिया होगा, टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर
सेकेंड इज ऑप्शन सी दैट इज उत्तराखंड। देखिए, इंडियाज फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर ये ओपन किया जाएगा कहाँ पे? उत्तराकाशी, उत्तराकाशी फॉरेस्ट डिवीजन in Uttarakhand. So option C is correct answer to your question number second. Coming on to question number third. Question number third here is Green Good Deeds campaign. This Green Good Deeds campaign has been launched by option A WWF India, option B MOEFCC, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, option C Greenpeace India, and option D UNEP, United Nations Environment Program. आई होप कि आपने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन बी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, ये कैंपेन लॉन्च किया है MOEFCC ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। किसके लिए? इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज पीपल, एंड इसका जो मेन एम है टू टारगेट पीपल एंड स्टूडेंट्स एंड इन पर्टिकुलर अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड ये टारगेट करेगा कॉमन पीपल इंक्लूडिंग थ्रू स्टूडेंट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन इज टू रेस्टोर and return clean and green environment to the next generation. This is the simple objective of this program, to restore and return clean and green environment. And ये कैसे होगा? जो common people है including students, उस इन common people and student group को टारगेट किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा। इसमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, स्टूडेंट्स का एंड अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्व रहेगा, जो एज ग्रीन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया देंगे। जैसे CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी टाइप से ग्रीन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये पहुंचाएंगे ये कॉमन लोगों तक, कॉमन पीपल तक ये टारगेट किया जाएगा in order to restore and return the clean and green environment to the next generation. So option B is correct answer here. Coming on to question number 4. Question number 4 here is biochemical pesticides are option A naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms, option B artificial chemicals that directly kill or inactivate the pests, option C biofertilizers that also act as pesticides, option D symbiotic microorganisms residing in plant roots that release certain chemicals hindering growth of foreign microbes. I hope कि आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4 is option A, that is these are naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms. C, जो ये बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स है, इसमें सबस्टेंसेस आते हैं दैट इंटरफेयर विद मैटिंग सच एज इंसेक्ट सेक्स, फेरोमोन्स एज वेल एज वेरियस सेंटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट्स टू ट्रैप। जो बायोपेस्ट्स है, ये पेस्टिसाइड्स है जो नेचुरल मटेरियल्स है सच एज एनिमल्स है, प्लांट्स है, उन्हीं से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड सर्टन मिनरल्स इसमें यूज़ होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेंगे कैनोला ऑयल, कैनोला ऑयल एक एग्जांपल है इसका बायोकेमिकल पेस्टिसाइड का, एंड बेकिंग सोडा भी है, एंड कैनोला ऑयल एंड बेकिंग सोडा इनको ये यूज़ कर सकते हैं हम एज पेस्टिसाइड्स। दैट इज़ फर्स्टली दीज आर नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंसेस। कैनोला ऑयल नेचुरली ऑकरिंग है, और बेकिंग सोडा की बात करें ये भी एक पेस्टिसाइड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज पेस्टिसाइड्स, राइट। और फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग pests. These are biochemical pesticides or naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms. Coming on to question number 5 here. Consider the following statements with reference to environment impact assessment. Statement first. EIA is a statutory body backed by Environment Protection Act 1986.
Statement second, the Central Pollution Control Board is the body responsible for the grant of environmental clearances in India. Statement third, Environmental Information Center is the repository of one-stop secondary data sources for EIA in India. Which of the following is are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1 and 3 only. And option D, 1, 2 and 3. That is all of the above. I hope कि आपने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन गेस कर लिया होगा, टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली. नाउ लुक, ये जो ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, दिस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसका काम है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, सपोज कोई डैम बनाना है, तो वो उस प्रोजेक्ट के बनने से पहले ही उसका काम ये है कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस प्रोजेक्ट के. यहाँ कोई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसा रहेगा. यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट है, सपोज कोई डैम बनाना हो, डैम के बनने से पहले ही इसका काम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. इस बॉडी का काम यही है कि उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही फ्रेम करना. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बैक्ड बाय एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस है ऑन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेसेस. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी. कमिंग ऑन टू स्टेटमेंट सेकंड हियर इज Central Pollution Control Board is the body responsible for the grant of environmental clearances in India. देखिए, ये जो EIA अथॉरिटी बनाई गई है फॉर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स की बात करें, उसके लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है, वो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं. एंड फॉर ये A1 प्रोजेक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. एंड फॉर कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स की बात करें, हेयर स्टेट EIA अथॉरिटी है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार है. लेकिन अगर हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, इसका खाली काम यही है कि जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनके लिए ग्रांट्स दिए हैं EIA अथॉरिटी ने, चाहे स्टेट हो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करता है कौन? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खाली मॉनिटरिंग करता है. राइट. सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. कमिंग ऑन टू स्टेटमेंट 3, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर इज द रिपोजिटरी ऑफ वन स्टॉप सेकेंडरी डेटा सोर्सेज फॉर EIA. देखिए, ये जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं कि प्रोजेक्ट जो ये क्या करता है, इसका काम है, इसके पास इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग प्रोजेक्ट्स, देयर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. और इसमें क्या है, प्रोफेशनल्स है, इसमें एनवायरमेंटलिस्ट्स है, कंसल्टेंट्स को ये जो फिर जो प्रोजेक्ट्स के होते हैं, जो इनको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, उनको ये डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. NGOs इसमें इन्वॉल्व हैं, NGOs भी काम करते हैं इसके लिए. एंड अगर हम इन नटशल में बात करें तो एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर इज़ द रिपोजिटरी ऑफ वन स्टॉप डेटा सेकेंडरी डेटा सोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया. सो स्टेटमेंट 3 इज अगेन करेक्ट हियर. सो ऑप्शन 1 and 3 only these are correct. Coming on to question number 6. Question number 6 here is, which of the following are the characteristics of mangroves? Option A, they are viviparous. Option B, they are halophytes. Statement first, they are viviparous. Statement second, they are halophytes. And statement third, they are pneumatophores. Select the correct answer using the code given below. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, 1 and 3 only. And option D, 1, 2 and 3. The correct answer to your question number 6 is option D, that is 1, 2 and 3.
देखिए ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये विविपेरस होते हैं। लाइक जैसे मैमल्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, वैसे ही उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स के, उनका डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्लांट के अंदर ही होता है। फिर वो एज प्रोपेगुलस डिस्पर्स होते हैं इन वाटर, जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्लांट के अंदर ही होती है। यानी कि जैसे अगर हम अलग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, उसमें सीड्स की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, फिर सीड उगता है और फिर प्लांट बनता है। लेकिन यहाँ पे मैंग्रोव्स के केस में क्या है कि प्रोपेगुलस डिस्पर्स होते हैं डायरेक्टली, जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्लांट के अंदर ही होती है। फिर ये वाटर में चले जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट फिर से हो जाती है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज दे आर विविपेरस। ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड, दैट इज दे आर हेलोफाइट्स। यानी कि हेलोफाइट्स मतलब ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ये मोस्टली सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। मतलब हेलोफाइट्स मतलब अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें, मोस्टली ये कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा साल्टी होते हैं, साल्टी एरियाज़ होते हैं। सो और ये क्या करते हैं, एज साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी काम करते हैं ये मैंग्रोव्स, क्योंकि उनके उनके रूट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके रूट्स होते हैं मैंग्रोव्स के, एज साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम ये काम करते हैं। दैट इज दे आर स्टेटमेंट टू, दे आर हेलोफाइट्स, दैट इज दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। दिस इज अगेन करेक्ट हियर। ऑप्शन स्टेटमेंट थ्री, दे हैव न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स स्पेशल एरियल रूट्स होते हैं इन मैंग्रोव्स के। लाइक अगर हम राइजोफोरा की बात करें, उनके पास राइजोफोरा में भी एरियल रूट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो मैंग्रोव्स होते हैं मोस्टली ये स्वैम्पी एरियाज, मड्स में होते हैं। वहाँ पे मड होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे जो रूट्स होते हैं मैंग्रोव्स के, उनके बीच जो गैसेस एक्सचेंज वो नहीं हो पाता। तो ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये एरियल रूट्स होते हैं इन मैंग्रोव्स के, एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड इन दिस स्वैम्पी प्लांट्स। लाइक अगर हम बात करें राइजोफोरा की, फॉर गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं ये एरियल रूट्स न्यूमेटोफोर्स। यस, दिस इज करेक्ट हियर, दैट इज दे हैव न्यूमेटोफोर्स। सो all of the statements are correct. So option D 1, 2 and 3 is correct here. Question number 7 here is, consider the following statements with reference to REDD+. Option A, it goes beyond checking deforestation and includes incentive for the enhancement of forest carbon stocks. Statement second, the incentives so received from REDD+ would be deposited in Campa fund. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और नॉट करेक्ट। यहाँ पे बताया गया है आपसे कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इनमें से सही नहीं है, यानी कि कौन गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए ये जो REDD+ है, दिस वाज डेवलप्ड बाय द पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड ये क्या करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं। जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वो उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को यानी कि उसमें उतने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस उन फॉरेस्ट में स्टोर हो सकते हैं, जिससे क्या होता है क्लाइमेट चेंज पे कम असर पड़ेगा। उन ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जहाँ पे जितने ज़्यादा फॉरेस्ट्स होंगे उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइनेंशियली उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, एंड जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं इन लो कार्बन पाथ्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ही इसका मोटिव है। एंड मेयरली इसमें खाली ये नहीं आते हैं कि इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे कि फॉर दिस खाली इसमें फॉरेस्ट्रेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ही कवर नहीं है, इसमें आते हैं इंसेंटिव्स मिलते हैं, बल्कि कंजर्वेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट्स इंक्लूडिंग, जिससे एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स होते हैं। यानी कि जैसे ही फॉरेस्ट्स इंक्रीज होंगे कार्बन स्टॉक्स यानी कि कार्बन कैप्चर ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए भी
इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को। सो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट हियर। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, ये जो ये इंसेंटिव्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ्रॉम रेड प्लस प्रोवाइड किए जाते हैं, these incentives would be passed to the local communities which are involved in the protection and management of forests, and ये कंपलसरी नहीं है कि it will be deposited in the CAMPA fund, that is compensatory afforestation fund। ये कोई प्रोविजन नहीं है इसमें कि these would be deposited in CAMPA fund, these would be provided to the local community involved in protection and management of forests। So statement second is incorrect, so the answer to your question is option B, that is 2 only। Coming on to question number 8, question number 8 here is, consider the following statements with reference to Montreux record। Statement first, it is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance। Statement second, it incorporates sites where changes in ecological character have occurred or are occurring or are likely to occur। Statement third, currently Chilka Lake in Odisha is included in Montreux record। And statement four, the Chilka Development Authority received the Ramsar Wetland Conservation Award। Which of the following is are correct? Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 1, 2 and 4 only. And option D, all of the above। I hope कि आपने correct answer guess कर लिया होगा। The correct answer to your question number 8 is option C, that is 1, 2 and 4। देखिए स्टेटमेंट हियर, स्टेटमेंट्स की बात करें, ये जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है इसमें वेटलैंड्स होते हैं जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट। इसमें आते हैं वो इम्पॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे चेंज होती है उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, हैव ऑकर्ड और आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर। स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो चिल्का लेक पहले 1993 में दिस वाज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, बट लेटर दिस वाज रिमूव्ड इन 2002। ये रिमूव किया गया था। एंड करंटली क्योलोदियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, एंड लोकटक लेक विच इज़ इन मणिपुर, ये इसमें इंक्लूडेड है। ये दो साइट्स है, ये दो वेटलैंड्स है, ये दो साइट्स है जो इंक्लूड है इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। एंड चिल्का लेक दिस वाज रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट, एंड उसके लिए क्योंकि वहाँ पे सिल्टेशन का प्रॉब्लम था जो कि बाद में उसको रिमूव किया गया एंड उस प्रॉब्लम को दूर किया गया। एंड फॉर दिस ये जो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिस अथॉरिटी रिसीव्ड रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर दिस जॉब। सो स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट ओनली। आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आ गया होगा एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक्स, हैव अ गुड डे।